Good morning, class 10th. Welcome to your science class. Students, in previous video lecture, we have discussed about total internal reflection and we have also learnt about rainbow formation. So students, in today's video lecture, we are going to discuss most interesting topic of this chapter, that is atmospheric refraction. Students, I am sure you know the nursery rhyme, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. But students, you really know why do stars twinkle? Students, that's exactly what we are going to study in this today's video lecture. And students, we will also look at other interesting things such as why do stars seem higher than they actually are? And do you know that we can see the sun rises 2 minutes before the sun actually comes up the horizon? And similarly, students, we can see the sun even 2 minutes after the sunset. So students, do watch the today's video lecture carefully because today's video lecture is very interesting and we are going to discuss some interesting facts. So without wasting any time, let's get started today's video lecture. Students, I am sure you have seen the stars twinkling in the night sky. But students, do you know that if you are astronaut and you go into space, you will see that the stars no longer twinkle. So students, stars no longer twinkle. They are like beautiful little bright dots in the black sky. Then students, why do stars twinkle on the earth? It is only due to the earth's atmosphere. Because of earth's atmosphere. Because students, the atmosphere refracts the light coming from the stars, which actually causes a twinkling effect. So students, twinkling effect of stars is due to atmospheric refraction. Students, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स कीप्स ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली एंड स्लाइटली बिकॉज जो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रही है हैज़ टू go through from many refractions and that is why we call this it as twinkling of stars. And let's say you are standing near a bonfire and you look at the things through the hot air above the fire. Students, what do you actually notice? Students, can you see lights above and behind the fire are flickering? They seem to be shivering. Why? Because students, the air just above the fire is hot and dense as compared to the cooler air above and around it. Why students? Students, as you all have learnt about refractive index. So, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हॉटर एयर का है इज स्लाइटली लेस देन और लाइटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कूलर एयर. सो स्टूडेंट्स, लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब विल रिफ्रैक्ट द लाइट एक्चुअली बेंड्स बट द लेयर्स ऑफ द एयर आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, दे आर नॉट स्टेशनरी. जो लेयर्स होती हैं एयर की वो शिफ्ट करती हैं, वो स्टेशनरी नहीं है. So students, the light coming from the bulb keeps refracting randomly and this gives us flickering effect. These flickering lights are at a close distance from the fire. Students, now you look at these lights. These lights are far away from the air, hot air. So students, the light coming from these far away bulbs will shifting randomly. So students, the amount of light entering our eyes keeps changing. As a result, the bulbs sometimes appear brighter and sometimes dimmer to us. And this bright or dim light or dim effect gives us twinkling effect.
Students, I hope this will give you an idea about the twinkling effect, about the atmospheric refraction. So similarly we can explain the twinkling of stars. Okay students, and the atmosphere is made up of many layers as you can see in the picture. यहाँ पे मैंने 3 layers शो की हुई हैं. Students, these layers are at different temperatures. The cooler layers are more dense as compared to the hot layers. So students, the atmosphere is made up of many layers having different optical densities. Students, now we look up at the stars. Students, now we look up at the stars. The light is coming from the star when light enters the atmosphere. ये आपका अगर हम इसको atmosphere माने तो when light enters the atmosphere, it goes refraction because of different layers, temperatures of different layers. Students, as we discussed, the atmosphere is made up of many layers having different densities. The bending of light also takes place at the boundaries of these layers. So ये जो स्टार है ये बहुत सारी रिफ्रैक्शंस जो है रियलाइज़ करता है हमारे एटमॉस्फेयर पर पहुंचने से पहले. ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मैनी रिफ्रैक्शंस होती हैं जब स्टार से लाइट आती है. अगर हम स्टार का एक्चुअल पाथ देखें तो अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो वो ऐसे होने वाला था, बट ड्यू टू मैनी रिफ्रैक्शंस ये जो पाथ है ये इस तरीके से चेंज हो जाता है. स्टूडेंट्स, जो स्टार्स होते हैं उनकी रियल पोजीशन तो यहाँ होती है बट उनकी हमें अपरेंट पोजीशन हमेशा दिखती है. एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि स्टार्स जो है हमें फ्लक्चुएटिंग करते दिखते हैं. होते यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हुई स्टार हमें यहाँ दिखने लग जाएगा, थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हुई हमें यहाँ दिखने लग जाएगा, थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हुई यहाँ दिखने लग जाएगा. मतलब बेंडिंग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शंस होने की वजह से वो लाइट जो है अपना पाथ चेंज करती है तो हमें उसकी रियल पोजीशन के बजाय उसकी अपरेंट पोजीशन देखने को मिलती है. और एक्चुअली उसकी पोजीशन जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है, स्टार्स ट्विंकल नहीं कर रहे होते और हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं. क्लास 10th रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि एक इंटरफेस होता है, एक मीडियम होता है और एक मीडियम 2 होता है. ठीक है, तो लाइट जो है अकॉर्डिंग टू रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर डेंसर से रेयरर में जा रही है, उस तरीके से जो है लाइट की बेंडिंग होती है. सो ये जो था रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा. क्लास 10th हॉट एयर जो है वो एक्चुअली एज अ रेयरर मीडियम एक्ट करती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है. बट जो कोल्ड एयर होती है वो डेंसर मीडियम एज एक्ट करती है बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है. सो जो ये एयर की लेयर्स हैं इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या होता है, वैरी करते हैं. एयर के अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपस में क्या करता है, वैरी करता है. तो जब हॉट एयर से एक लाइट रे अगर डेंसर मीडियम में जाने की कोल्ड एयर में एंटर करेगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड हो जाएगी बिकॉज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है. सेम जो है स्टार्स के केस में, ट्विंकलिंग स्टार के केस में होता है. स्टूडेंट्स, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स कीप्स ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार रीचेज द ऑब्जर्वर्स आई, हमारी आई में, आफ्टर मैनी रिफ्रैक्शंस थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट हैविंग different optical densities. Students, since optical densities of the various layer of air changes continuously वो change कर रही हैं, fluctuate कर रही हैं randomly. So students, light coming from star appears to be shimmering and gives us the effect of twinkling of stars. क्लास 10th अगर हम ये अर्थ माने और अर्थ के ऊपर ये क्या आ गया हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं, किसकी, गैसेस की. ठीक है, एयर की लेयर्स हैं, सॉरी बच्चे गैसेस की नहीं, एयर की डिफरेंट लेयर्स है. क्या डिफरेंट लेयर्स का टेम्परेचर अलग हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, आपके एयर की लेयर्स का भी टेम्परेचर जो है आपस में वैरी करता है. टेम्परेचर ऑफ एयर वैरीज थ्रू आउट एटमॉस्फेयर एंड स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो वैरीज. व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू एटमॉस्फेयर इट ट्रेवल्स इन कवर्ड पाथ. जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के ऊपर इंसिडेंट हुई यहाँ पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है.
अब यहाँ पे मीडियम एयर के अंदर ही डिफरेंट मीडियम कैसे बन जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स की वजह से। सपोज ये हॉट एयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉट एयर एज अ रेयरर मीडियम एक्ट करती है, तो ये रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये जो है एक कवर्ड पाथ बनाती है बिकॉज ऑफ मैनी रिफ्रैक्शंस जो इसको लाइट जो एयर की लेयर्स जो है प्रोवाइड करती हैं। नेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस विद टाइम एंड स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है बड़ी सारी लाइट्स हमारे ऑब्जर्वर के आई में जाती हैं और हमें ऐसा लगता है स्टार एक्चुअल में इस पोजीशन में होता है और हमें लगता है वो इस पोजीशन में, कभी हमें इस पोजीशन में दिखेगा, कभी वही स्टार इस पोजीशन में दिखेगा, तो वो हमें फ्लक्चुएट करता, टिमटिमाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा अपेयर होता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स का हमें ऐसे ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है बट स्टूडेंट्स वो एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है और कुछ नहीं होता, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो स्टार्स से आ रही है वो चेंज हो रही है एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट हैज़ टू गो थ्रू आउट डिफरेंट रिफ्रैक्शंस। दैट इज़ वाई हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी आइज़ में लाइट आती है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आइज़ में एंटर करता है वो जो है समटाइम्स ब्राइट होता है, समटाइम्स डीमर होता है, जिसकी वजह से ये ब्राइट और डीमर इफेक्ट जो है हमें ऐसा लगता है एज अ ट्विंकलिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ नोट की गई है कि प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, उसका क्या रीज़न है बच्चे, लेट्स डिस्कस दैट। व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में एक पॉइंट सोर्स बताया है, दैट इज़ स्टार, एंड आपको एक प्लैनेट शो किया है जिसको हम एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। स्टार्स को हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। वाई? बिकॉज स्टूडेंट जो हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट का, अर्थ प्लैनेट का और सन का, स्टार्स का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टार्स हमें एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ऑफ लाइट दिखते हैं स्टूडेंट्स। बट प्लैनेट्स आर नियरर टू द अर्थ एंड मे बी कंसिडर्ड एज extended object, extended source. These planets may be considered as a collection of large number of point size sources of light. ये जो planets हैं ये point size sources of light का combination की collection से बने होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट सोर्सेज के साथ एक प्लैनेट को शो किया है, यू कैन सी इन द पिक्चर शोन इन द वीडियो। स्टूडेंट्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज से बनते हैं। तो होता क्या है, जब हमारा एक पॉइंट सोर्स जो है ट्विंकल कर रहा होगा तो दूसरा पॉइंट सोर्स ट्विंकल नहीं कर रहा होगा। एक साइड ब्राइटर दिख रही होगी, एक साइड डिम दिख रही होगी। अगर एक साइड की पॉइंट सोर्सेज जो है ब्राइट शो हो रहे हैं, दूसरी साइड के पॉइंट सोर्सेज क्या होंगे, हमें डिम शो हो रहे होंगे। तो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है एक पार्ट में, वो नलीफाई हो जाता है ट्विंकलिंग इफेक्ट दूसरे पार्ट की वजह से, जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज, ऑन द होल हम बोलें तो जो ब्राइटनेस है प्लैनेट की वो सेम रहती है और कभी भी ट्विंकल नहीं करती लाइक अ स्टार। नाउ क्लास 10, अगर मैं यहाँ पे अर्थ को ड्रॉ करूं, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, एयर होगी, है ना बच्चे। यहाँ हम एक प्लैनेट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या हैं बच्चे, पॉइंट सोर्सेज है, बहुत ज़्यादा पॉइंट सोर्सेज की कलेक्शन से ये जो है प्लैनेट फॉर्म हुआ है, ठीक है। प्लैनेट्स इज अ पॉइंट सोर्सेज ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार ले लिया, ठीक है, एज अ पॉइंट सोर्स, ठीक है बच्चे। तो अब होता क्या है बच्चे, बिकॉज हमारा जो डिस्टेंस है स्टार्स का अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के बहुत पास हैं, बहुत ज़्यादा नियरर हैं। तो जब ये जो लाइट है, हमारी लाइट प्लैनेट से हमारे एटमॉस्फेयर पे आती है, स्ट्रेट लाइन आएगी बिकॉज वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है।
जैसे ही ये लाइट इस एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। एक्चुअल में ये लाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी, ये बेंड होगी। ये भी हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट ये भी बच्चे एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, ये जिगजैग मोशन में दिखती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, जो एक इस लाइट को देख रहा है, प्लेनेट से आने वाली लाइट को। तो होता क्या है एक्चुअल में प्लैनेट्स के केस में, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट सोर्सेज कलेक्शन है, पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट का। तो जब एक पॉइंट पे हो सकता है यहाँ पे ये पॉइंट सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ब्राइट है और ये सब डिम दिख रहे हैं, तो दूसरे टाइम पे ऐसा हो सकता है ये जो है ये ब्राइट दिख रहे हैं और ये डिम दिख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। यहाँ से जो ऑब्जर्वर की आईज में रिफ्रैक्शंस जा रही हैं, जो लाइट ट्विंकलिंग इफेक्ट जा रहा है, वो नलीफाई हो जाता है। हो सकता है एक टाइम पे एक पॉइंट सोर्सेज ब्राइट दिख रहा हो और दूसरा लाइटर दिख रहा हो, बट जो ब्राइट दिख रहा है वो दूसरे डिम पॉइंट सोर्स की लाइट को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऑन द होल ब्राइटनेस ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स द सेम एंड वी कैन से दैट प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल लाइक अ स्टार। हमें प्लैनेट जो है वो क्या दिखते हैं, ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट दिखते हैं। आपको जैसे स्टूडेंट्स आप इवनिंग में देखें तो आपको वीनस भी जो है क्लियरली दिखेगा स्टूडेंट्स। सो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, ये इस इंटेंसिटी को उतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इनका डिस्टेंस, प्लैनेट्स का और अर्थ का डिस्टेंस क्या है, काफी कम है। सो students, our Earth's atmosphere is unable to cause variation in the light coming from a big sized planet, because planet is a very big sized, and because of which planet does not twinkle at all. Students, the continuously changing atmosphere is unable to cause variations in the light coming from a this बिग सोर्स प्लैनेट। हमारे प्लैनेट्स जो हैं उनका साइज बहुत बिग होता है। स्टार्स तो बिग होते ही होते हैं, बट वो हमें पॉइंट सोर्स दिखते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है, हमारा अर्थ है जो, वो इसको जो है इसकी वेरिएशंस उतनी शो नहीं कर पाता। सो ये रीज़न है कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। हमने आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स का भी देखा कि हमें रियल पोजीशन नहीं दिखती, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें भी हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, लाइक अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, और जो मैंने आपको सनराइज, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट बताया उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी कुछ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनीथिंग, you can ask me in your doubt session. Thank you students. Have a nice day.